Hello students, I am Dr. Madhu Srivastava, Applied Science Department, Sage Group. So students, today's our topic is partial differentiation. In previous class, you have studied about ordinary differentiation. Just recall, what is ordinary differentiation? In ordinary differentiation, y is a function of x. So in ordinary differentiation, there is only one and only one independent variable. Here, x is independent variable and y is dependent variable. This is your ordinary differentiation. Okay? And now today's our topic is partial differentiation. So what is in partial differentiation? Partial differentiation, there is more than one independent variable. There is let's say z is the function of x and y. Z is the function of x and y. It means z can be differentiated with respect to x and y. X and y are two independent variables. So in ordinary differentiation, there is one and only one independent variable, and in partial differentiation, the independent variable will be more than one. It may be two, it may be three, but it is more than one. So it is your partial differentiation. Got my point? So here z is a function of x and y. Then z can be differentiated with respect to x and y. Let's see. We can write, if z is differentiable with respect to x, then we can write del z by del x. क्योंकि यहाँ पर z का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो डिफरेंशिएशन का नोटेशन है वो भी थोड़ा चेंज होता है. क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसमें हम जो डिफरेंशिएशन लेते हैं वो d by dx लेते हैं, जिससे आप लोग फैमिलियर है क्लास 12 में. यहाँ पर अब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो नोटेशन होता है, इट इज डेल बाय डेल एक्स. सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू y आल्सो. ओके, तो डेल z बाय डेल एक्स एंड डेल z बाय डेल y, इट इज आवर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव. यू कैन से इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके, सो लेट we are going to differentiate z with respect to x second time. So we can write del 2z by del x square or del 2z by del y square. Okay, so this is the second order derivative. Okay, so in partial differentiation, again I will recall, in this function there are two independent variables. The notation of partial differentiation is del by del x or del by del y. Okay, so this is called the first derivative. Now if I want to differentiate again, then I will write del 2z by del x square and del 2z by del y square. This is the second derivative of z. Okay, let us see. Okay, let us see one question I have written here. If u is the function of y by x, then show that x del u by del x plus y del u by del y equal to 0. पहले फंक्शन को समझ लीजिए. u एक ऐसा फंक्शन है जो y बाय x का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर x भी है वेरिएबल और y भी है वेरिएबल. यानी u जो है वो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ही, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है. ठीक है, और मुझे फिर इस इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाना है, यानी शो करके दिखाना है. तो लेट अस सी. Given u is equal to f of y by x. So let's differentiate first u with respect to x. So what will we get? So it is del u by del x is equal to, u को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. So given है आपको u is equal to function of y by x. So let us differentiate with u with respect to x. So u is a function of y by x, so del u by del x is, first we will differentiate the function. Then we will differentiate the variable. Okay, अगर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन के बाद क्या लिखते हैं, f डैश. अभी हमारा जो उसका फंक्शन है y बाय एक्स वो एज इट इज रहेगा.
नाउ वी विल डिफरेंशिएट y by x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब हमारा y कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा y by x का डिफरेंशिएशन? इट इज y by x square. It is minus y by x square. It is the differentiation of 1 by x. Okay. Now again I am going to differentiate u with respect to y. So u is f of y by x. So first differentiate the function, then we will differentiate y by x. So जैसे ही आपका फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, it gives you f dash y by x. Now I will differentiate y by x. So x will behave like a constant. Then the differentiation of y is 1. So you will get 1 by x. So this is the differentiation of u with respect to x. This is the differentiation of u with respect to y. Now see the equation. यहाँ पे लिखा हुआ है show that x del u by del x plus y del u by del y. तो let us see. So LHS जो है आपका वो है x del u by del x plus y del u by del y. Okay. Put the value of del u by del x and del u by del y here. What we will get? It is x into del u by del x is f dash y by x into minus y by x square. Okay. Then plus y del u by del y. This is your del u by del y. It is f dash y by x into 1 by x. Okay. हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन थी उसमें हमने वैल्यू पुट अप कर दिया। नाउ जो कॉमन टर्म्स है हम उसको ले लेते हैं। तो f डैश y by x यहाँ भी है, f डैश y by x यहाँ पर भी है, उसको कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा f डैश y by x एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर? इट इज x into minus y by x square then plus y into 1 by x. Just solve this equation. So f dash y by x, एक x जो है कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस y by x एंड यहां पर आपको मिलेगा प्लस y by x. तो माइनस y by x प्लस y by x will be 0. So what is the value? The final value will be 0. Okay? तो हमने जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा, डेरिवेटिव्स देखा, एक क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन में जो है हमें कॉन्सेप्ट लगाना है और प्रूफ को हमें सॉल्व करना है. थैंक यू. So students, this is our second question. You just see here, if u is equal to x square plus y square plus z square, the whole power is minus 1 by 2. तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो u फंक्शन है, u जो है आपका u जो है 3 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है. कौन से वेरिएबल? x, y और z. और ये जो x, y, z है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो u इज द फंक्शन ऑफ दिस एंड देन प्रूफ दैट x del u by del x plus y del u by del z plus z del u by del z इक्वल टू माइनस ऑफ u. तो यहाँ पर u क्योंकि x, y और z का फंक्शन है तो u x, y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है. जब u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो y और z कांस्टेंट होंगे. जब u y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब x और z कांस्टेंट होंगे. और जब u z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब x और y कांस्टेंट होंगे. ठीक है. तो लेट अस सी द क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन इज u इज इक्वल टू x स्क्वायर plus y square plus z square raised to the power of minus 1 by 2. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट u with respect to x, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें del u by del x, del u by del y और del u by del z हमें कैलकुलेट करना है. तो आपको मिलेगा del u by del x. जब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z विल बी कांस्टेंट. तो सबसे पहले आपको पता है जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें पावर सबसे पहले डिफरेंशिएट होती है. तो वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस 1 by 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1. This is your differentiation of power. Now differentiate the bracket. तो क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो x ही डिफरेंशिएट होगा, y और z कांस्टेंट हो जाएंगे. तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा 2x. ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो आपको मिलेगा -1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ -3/2 इंटू 2x. ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ माइनस पावर में है तो ये टर्म डिनोमिनेटर की है, आपको मिलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2. तो डेल यू बाय डेल एक्स की आपको फाइनल वैल्यू इतनी मिल गई. अब यहाँ पर क्योंकि x, y और z की पावर सेम है और फंक्शन जो है u इन तीनों का ही फंक्शन है, तो जो है डेल यू बाय डेल एक्स का जो रिजल्ट है, मतलब u जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, ये जो इसका रिजल्ट है, सिमिलरली जो है अगर आप u को y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यूज मिलेंगी. जो x की मिल रही थी अब वो आपको y की वैल्यूज मिलने लगेंगी. तो वी कैन राइट डेल यू बाय डेल y विल बी, इट इज माइनस ऑफ y. तो यहाँ पर जो x की जगह है वो अब आपका y आने लगेगा और आपको वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2. Similarly again we will differentiate u with respect to z. We will get minus of z upon x square plus y square plus z square raised to the power of 3/2. ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड था डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल जेड को मैंने कैलकुलेट करके बता दिया. उसमें मैंने डेल यू बाय डेल एक्स पूरा कैलकुलेट किया है एंड सिमिलरली यू विल गेट डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड. So now you can give this equation number 1, this is your equation number 2 and this is your equation number 3. So now put the value of del u by del x, del u by del y and del u by del z in the given equation. In the given equation, what is the given equation? This is the given equation. So जब हम पुट अप करेंगे तो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? इट इज x इंटू माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2. दिस इज योर डेल यू बाय डेल एक्स. सिमिलरली प्लस y इंटू आपको वैल्यू मिलेगी माइनस वाई अपॉन x square plus y square plus z square raised to the power of 3/2. Then plus z into minus z upon x square plus y square plus z square raised to the power of 3/2. अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, तो वैल्यू आपको मिलेगी. देखिए डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर जो है मैं तीनों से कॉमन ले लूंगी और न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो जो मुझे कॉमन वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2. जस्ट करिए. तो कॉमन जो वैल्यू निकाला मैंने तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और न्यूमिनेटर में मुझे मिलेगा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो इट इज माइनस, रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर गया, वाई से मल्टीप्लाई कर गया और जेड से मल्टीप्लाई कर गया. अब आप देखिएगा तो जो न्यूमिनेटर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर है 1 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2. तो जो एक जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ऑफ
1/2 की पावर ऑफ 1/2। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही आपको u गिवन था, x² + y² + z² is to the power of -1/2। ठीक है, so this u is equal to the what we have get, this is minus of u, this is actually your u with minus sign। So we have proved this कि this left hand side calculation or equation is equal to the right hand side, this is minus of u। So thanking you, this is the question of partial differentiation।